زندہ خدا کی پرستش کرے، اپنے زندہ خدا کو یاد کرے. ہاللویا. Oh, praise God. خداوند تیرا شکر ہے. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Almighty God, we give you praises. We give you glory. We worship you. We adore you, Holy Spirit. We adore you, Holy Spirit. We adore you, Jesus. Thank you. Praise Jesus. Rupa Baba Rashidana Shayvana Mahudana Mahiya Vana Mahu. اے خدا کے بندو، آؤ سب اس کو مبارک کہیں. مقدس کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو. خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، کلام فرماتا ہے وہ سیون میں سے تجھے برکت دے گا. آئیے مل کر خداوند کی پرستش کریں گے، تالیاں بجاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، خوشی کے ساتھ خداوند کی تعریف کریں. یہ لمحات مہیا کروں کہ ہم بھائی باہم مل کر چند لمحے گزاریں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں. اس فیلوشپ کا جو مین مقصد ہے کہ ہم اپنے اپنے ایریا اور اپنی اپنی منسٹریز اور مصروفیات سے وقت نکال کر آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کو گہرے طور پر جان سکیں اور پھر ایک دوسرے کو اپنے پاس بلائیں، اپنے گھر میں بلائیں، اپنے چرچ کے پلیٹ فارم پر بلائیں، محبت کا اظہار کریں، کیونکہ ہم یسوع مسیح کے کھیت میں سب ایک ہے. ہاللویا ہاللویا. کلیسیا بھی اس کی ہے، ہم بھی اس کے ہیں، ہم سب اس کے مزدور ہیں اور امبیسڈر ہیں یسوع کے نام سے. ہاللویا.
اور یہ محبتیں بڑھتی رہنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ آؤ چند لمحے پیار سے گزاریں اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں, ایک دوسرے کی خدمت کو اپریشیٹ کریں, قبول کریں جو مسیح کے کلام کے مطابق ہے, تاکہ خداوند کی بادشاہت کا کام جو ہے وہ وسعت پذیر ہو سکے. ہاللیلویہ. سو خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا مانگیں. جلال کے بادشاہ, خوبصورت بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں, اور یہ وہ بھائی ہیں جو خداوند رہنماؤں کے بھی رہنما ہیں, تاکہ خداوند وہ شاگردیت تیار کی جائے جو آگے شاگرد بنائے اور مسیح کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کر سکے. شکر گزار ہے خداوند پاسٹر پرویش کھوکھر صاحب کے لیے, اس چرچ کے, اس منسٹری, اس ساری ٹیم کے لیے, جن کے سبب سے آج ہم یہاں جمع ہوئے اور ہم تیری حضوری میں مل کر ایک آواز, ایک روح کے اندر خداوند اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں, شکر گزاریاں پیش کر رہے ہیں. اور خداوند آج پیغام کے سبب سے بھی اور ہماری گفتگو دعاؤں کے سبب سے ہم ایک انرجی کو لیں جو روح کی انرجی ہے, اور ہم فتح یابی کے ساتھ یہاں سے گھروں کو جائیں, اور ایک بڑی انائٹنگ کے ساتھ, ایک نئے وسع کے ساتھ خداوند اپنے خدمت کو جاری اور ساری رکھ سکے. اس علاقہ کے لیے تیرا شکر ہو, ان سارے خدام کے لیے تیرا شکر ہو. اسی طرح سے میل ملاپ قائم دائم رہے اور خداوند یسوع مسیح کا بدن وسعت پائے, ترقی کرے اور کاملیت کی طرف جائے. تیرا شکر ہو, سارے ہی سر کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. اپنے میرے بھائی پاسٹر آصف جان صاحب کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو خوبصورتی کے ساتھ ہمیں لے کر چل رہے ہیں. ہم برکت پا رہے ہیں, اور بلیس کا برکت دے یسوع مسیح کے نام سے آمین. میرا نام سلیمان مسیح, اسمبلی آف جیسس کرائسٹ ان پاکستان, بشپ, چیف پیٹر, ہیڈ آفس کرسچن بستی امرتسر. اشرف جیڈی میرا نام ہے. ماڈرن کلونی, پہاڑ کلونی کے ساتھ جو ہے وہاں سے میرا تعلق ہے, اور خدمت جو ہے وہ پاسبانی ہے, اور اس کے ساتھ ٹرینیٹی تھیولوجیکل بائبل کالج کا بھی ہم اس کو رن کر رہے ہیں کوئی 15-16 سال سے. اور اس کے ساتھ مین گول بھائیوں کی باہم ملاقات اور میل ملاپ پر ہم کام کر رہے ہیں. پیٹر جان ڈینیل کوکر جی, گریس نمسیول پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان احمد آباد. نیم سیمول, ٹرینیٹی ایونجیلیکل پریئر سروس ای بلاک میں خدمت کرتا ہوں, اور یہی میری خدمت ہے. ان کی سرپرستی میں, ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے میں خدمت کا کام انجام دے رہا ہوں. میرے روحانی باپ بھی ہیں, اور بہت سالوں سے میں ان کے زیر سایہ رہ کے خدمت کے کام کو سیکھ رہا ہوں. انہی کے ٹرینیٹی بیبلیکل جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھا بھی رہا ہوں. یہ ٹرینیٹی یونیورسٹی کے پرنسپل بھی ہیں, اور بہت سالوں سے اس خدمت کے کام کو انجام دے رہے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے کلام کی خدمت کو انجام دیں. سر, میرا نام رومن جوید ہے, اور میری خدمت بلاک میں دیولی بریڈ چرچ کے نام سے ہم کر رہے ہیں, اور خدا ہمیں برکت دے. آمین. زوردار تالیاں. توقیر الہی گل, بس میری یہی پہچان ہے کہ میں خدا کا سب سے چھوٹا خادم ہوں. واہ واہ واہ. آپ بشپ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں. کل میرا بہت سارا ٹائم بشپ کے ساتھ گزرا, اور بہت سارا کچھ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا. خدا آپ کو برکت دے سکتے ہیں. میرا نام مبارک فرانسس ہے, میں شادمل فاضلہ کالونی سے ہوں, اور میں پاسٹر آصف جان کے چرچ میں خدمت کرتا ہوں, اور نوجوانوں میں خدمت کرنا میرا پسندیدہ. میرا نام اسد اصغر ہے, میں یوحنا آباد ڈی بلاک میں رہتا ہوں, اور جو ہے وہ میں بائبل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور ٹرو ورشپرز منسٹریز جو ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. آسی ہے, اور میں کی بورڈ پلے کرتا ہوں, اور لائن آف جوڈا بینڈ ہے اس کو میں اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. جوید آسی ورشپر اور سورن گاڑا چرچ کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. میرا نام یوسف ثانی ہے, یوحنا آباد ای بلاک میں رہتے ہیں, اور مختلف جگہ پر ایونجلزم کا کام کر رہے ہیں, گھٹنوں پر زیادہ کام کر رہے ہیں, اور مختلف علاقوں میں ناروال کے علاقہ اور اکاڑا کے علاقہ میں کام کر رہے ہیں.
खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। सैमुअल सरवर मेरा नाम है, हैप्पी लाइफ फॉरएवर चर्च मिनिस्ट्री का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। ई ब्लॉक गली नंबर 5 में हमारा चर्च है यहोनाबाद के अंदर। आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरा नाम सलीम बशीर है और मेरा ताल्लुक गजुमता से है और मैं सेवलोस चर्च मिनिस्ट्री में पास्टर परवेज साहब के साथ और काम कर रहा हूँ और जो रूहानी मेरे उस्ताद हैं वो बिशप साहब और पास्टर साहब हैं। मेरा नाम आरफूसी गिल है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज पीजी चर्च से है जिसके चेयरमैन खुदा के अजीम खादम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन है और मैं उनके साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। मेरी रिहाइश जो है वो बाहर कॉलोनी के अंदर है और मैं आज इस बात की भी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे इब्तदाई उस्तादों में से डॉक्टर बिशप नाइम सैमुअल साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं होप ऑफ ग्लोरी चर्च यहोनाबाद में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और मेरा तल्लक बाहर कॉलोनी से है। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम तारिक जावेद गिल है और जो मेरा तल्लक है बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च के साथ है। मेरे बिशप साहब का नाम डॉक्टर मजीद नाज है और मैं यमुनाबाद में और दूसरी जगह पर जाकर खिदमत करता हूँ। आमीन। मेरी तरफ से सबको सलाम। आपका भी सलाम। मेरा नाम सैमुअल मसीह है। मैं अम्बसदू बैतनिया चर्च में खिदमत करता हूँ। मेरा नाम लैद मसीह है। यमुनाबाद एफ ब्लॉक में पास्टर रोगन साहब के साथ चर्च में खिदमत करता हूँ। मेरा नाम असीम नेमत है और यमुनाबाद के अंदर मैं ऐसे इंचार्ज पास्टर असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट चर्च के साथ खिदमत कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम उस्ताद बिशप सैमुअल साहब हैं जो मेरे रूहानी टीचर हैं और प्लस इज़्ज़त मां बिशप सुलेमान साहब जिनकी मिनिस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। आपका भी सलाम। मेरा नाम अबी सलूम है और मैं मदरी चौक में रहता हूँ और पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मैं वर्शिप करता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे उस्ताद पास्टर परवेज कोकर साहब इनसे मैंने तालीम पाई है और मैं यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ खिदमत कर रहा हूँ और ख़ास कर मैं बच्चों में काम करता हूँ, उनको संडे स्कूल की तालीम देता हूँ, इब्तदाई तालीम, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ई ब्लॉक में काम करता हूँ और रैश मेरी मुंदरी चौक में है। फरियाद मसीह मेरा नाम है। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। मसीह यीशु में फुल फजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा तल्लुक है नवाज शरीफ कॉलोनी से। मेरा नाम है जी शान करामत और पीजीए से मेरा तल्लुक है। पीजीए से खिदमत करता हूँ। खुदावंद के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आपका भी सलाम। मेरा नाम शहबाज मसीह है। मैं ये पाकरब के साथ चिल्ड्राई गाँव है, वहाँ पर हमारा चर्च है शलोम अनमोल मिनिस्ट्री के नाम से। मेरे बड़े भाई भी पास्टर हैं और हम सब मिलकर खिदमत कर रहे हैं। मसीह के प्रोफेसर कादर और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मेरा नाम यशवा मंगल है और मैं जनाब बिशप डॉक्टर नाइम सैमुअल की ज़ेर साया में हम तालीम पाते हैं और जनाब प्रोफेसर परवेज कोकर साहब भी हमारे टीचर हैं और ट्रिनिटी इवेंजेलिकल प्रेयर असम्बली चर्च से हमारा तल्लुक है और इस नगर काना नौ लाहौर में हम रहाइश पज़ीर हैं और मैं कलाम खुदा का अदना सा शागिर्द हूँ। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मेरा नाम लियाकत रंगा है और मैं अपने उस्ताद मोहतरम जो यहाँ पर मौजूद हैं इज़्ज़त मां बिशप डॉक्टर नाइम सैमुअल के ज़ेर साया ट्रिनिटी इवेंजेलिकल प्रेयर असम्बली इस नगर में खिदमत करता हूँ। मसीह के अजीम नाम में सबको सलाम। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम जरीना शहबाज है और मेरे उस्ताद बिशप नाइम सैमुअल है। इन्हीं के ज़ेर साया में अभी तालीम ले रही हूँ, बाइबल तालीम, और चर्च का नाम मेरे शोहर हैं, उन्होंने बता ही दिया है, हम जहाँ से आए हैं, तो मैं इवेंजलिस्ट की खिदमत को सरअंजाम दूँ। मेरा नाम खुर्रम स्टीफन है और मैं यमुनाबाद में खिदमत का काम सरअंजाम दे रहा हूँ और खुदा का एक छोटा सा खादम और छोटी सी खिदमत है यमुनाबाद में, लेकिन अब सबकी दुआओं से हम प्लान कर रहे हैं कि यमुनाबाद से बाहर भी जाकर खिदमत करें। मेरा नाम याकूब पॉल है और काफ़ी सालों से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मसीह खुदा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम।
आप सबकी सलामती हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक बार हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जो खिदमत खुदा ने हमें दी है। अभी हमने अपनी अपनी खिदमत को एक दूसरे के साथ शेयर किया है और उस खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए कि खुदा ने आपको खादम बनाया है, खुदा ने आपको खिदमत दी है, खुदा ने आपको मुख्तलिफ इलाकों में रखा है। आइए शुक्रगुजारी, अपनी आवाज़ें बुलंद करें, जरा अपनी आवाज़ें बुलंद करें शुक्रगुजारी के लिए। शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आओ रास्तबाजों खुदा की शुक्रगुजारी करें, सिर्फ अपने लिए शुक्रगुजारी करें, अपनी खिदमत के लिए, अपने इलाके के लिए शुक्रगुजारी करें, उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने आपको दिए हैं, जिनके आप पासबान हैं, जिनके आप रहनुमा हैं। उन लोगों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, उन इलाकों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें जो इलाके खुदा ने आपको दिए हैं, ताकि उन इलाकों में आप उसके नाम को जलाल दें। आइए शुक्रगुजारी करें खुदा उनकी, सब शुक्रगुजारी करें, दुआ कीजिए खुदा के हुजूर में। ये वक्त दुआ का वक्त है। आइए हम खुदावंद को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि उसने अपने खेत में काम करने के लिए हमें अपने साथ शरीक कर लिया है। उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए खुदा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ लश्करों के खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। ओ तू कादिर मुतलक है, आसमान तेरे हैं और जमीन तेरी है। ऐ खुदा हम दिल से शुक्रगुजार हैं, तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है, और हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते कि तूने ऐ खुदा हमें खिदमत के लिए चुना है। खुदा हमें निजात दी अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, और यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि तुम फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे। ओ हाय बाप, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते, शुक्रगुजार हैं आज की सारी फेलोशिप के लिए, और जितनी ऐ खुदा सेशन हो चुके हैं हम उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आगे आने वाले जितने भी ऐ खुदा प्रस्टिश का पोर्शन है, और फिर हम मिलकर जब दुआएं करें और फिर तेरे कलाम को सुने, ऐ खुदा तू हमारी रहनुमाई करना, हमारी मदद करना। ऐ खुदा तेरा जलाली और तेरा कादर हाथ चाहते हैं, तेरे बंदा को जो हमें वर्षिप में लीड करे, ऐ मेरे खुदा हम तेरे हाथों में दे देते हैं। ऐ खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल करना, अपने बंदा को इस्तेमाल करना, और हमें तौफीक देना कि हम सब मिलकर तेरी प्रस्तुत करें। तेरा शुक्रिया अदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े होकर हम खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे, तालियां बजाते हुए अपने कदमों।
इसी तरह हम परस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे, उसके बाद फिर हम दुआया सेशन में शरीक होंगे। हम मिलकर दुआ कीजिए हालेलुया। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ कीजिए। हर तरह की रिश्वत, हर तरह की करप्शन, हर तरह का जुल्म, हर तरह की बेरहमी पाकिस्तान में से जाती है। आइए हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर यीशु के खून से धुला हुआ पाकिस्तान मांगिए। यीशु के खून से धुला हुआ पाकिस्तान, ओ यीशु के खून से धुला पाकिस्तान। यहाँ पर कौमे, कबीले, ओ गैर मुस्लिम के लोग, ओ मसीहत में आए, चेंज आए, तब्दीली आए। दुआ कीजिए उम्मत कबीले चेंज हो, ओ खुशखबरी के वसीला से, कलाम के वसीला से एक चेंज आए, एक तब्दीली आए। तब्दीली के लिए दुआ कीजिए, तब्दीली के लिए दुआ कीजिए। आइए हम मिलकर पाकिस्तान की कलीसिया के अंदर बेदारी की दुआ करना शुरू कीजिए। बेदारी के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के अंदर बेदारी के लिए दुआ कीजिए। कलीसियाएं बेदार हो जाएं, पाकिस्तान का चर्च बेदार हो जाए। बेदारी के लिए दुआ कीजिए, बेदारी को मांगिए। कहिए खुदा से भेज, बेदारी का रूह भेज दे। खुदा से कहिए बेदारी का रूह भेज दे। खुदा से कहिए, यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना शुरू कीजिए, बेदारी को मांगना शुरू कीजिए, रिवाइवल 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 को मांगना शुरू कीजिए। बेदारी की दुआ कीजिए मेरे असीस। हालेलुया, ओ हालेलुया। बेदारी की दुआ कीजिए। आइए इस चर्च के लिए दुआ कीजिए, इसके खादिम के लिए, पास्टर के लिए, और पास्टर परवेज फोकर साहब के लिए दुआ कीजिए। उनकी सारी इंतजामिया के लिए दुआ कीजिए, जिन्होंने ये इंतजाम किया कि खुदा के कदम, खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां जमा होकर मिलकर दुआ करें। बाइबल में लिखा है आखिर ज़माना में जमा होने से बास ना हो। उन्होंने ये इंतजाम किया, उनके लिए दुआ कीजिए। बरकत मांगिए, बरकत मांगिए। आज इस फेलोशिप का पहला डे है, पहला दिन है। ओ इसलिए इस काम को जारी, खुदा इस काम को जारी रखे। खुदा इस काम को क़यामत से, खुदा से दुआ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा आज के से वो आएंगे और हमें एक दुआ में लीड करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मुझसे और छोटी दुआ। हालेलुया, Praise the Lord, worship you Jesus, thank you Lord, hallelujah. आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। Praise the Lord, hallelujah. खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समुंदर
ईमान रखते हैं तो दुआओं को सुन रहा है, तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, सारी इज्जत और जलाल तुझे मिले हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इसी रूह में हम रहेंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। और मैं खुदा के बंदा से भाई जुबैद से कहूँगा कि हमें वर्शिप सॉन्ग में लीड करें, दुआ करते रहें। आप गैर ज़बानों में दुआ कर सकते हैं, आप रूह में दुआ कर सकते हैं, दुआ करते रहें। खुदा का बंदा हमें एक सॉन्ग में लीड करेगा, ओ हाले वर्शिप सॉन्ग में लीड करेगा। अपने लिए आज कलाम को मांगिए। Praise the Lord.
اس کا کلام جب آتا ہے تو وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اس کا کلام رہنمائی کرتا ہے، اس کے کلام کو مانگیں۔ اس کا کلام جب آتا ہے تو وہ امپاور کرتا ہے، اس کے اندر قدرت ہے۔ اس کے کلام کو اپنے لیے مانگیے، اپنے خاندان کے لیے مانگیے، اپنی کلیسیا کے لیے اس کے کلام کو مانگیے، اپنی قوم کے لیے اس کے کلام کو مانگیے، اپنے ملک کے لیے اس کے کلام کو مانگیے، اس کے کلام کو مانگیے، پریز اللہ۔ میں درخواست کروں گا بشپ یعقوب آل صاحب سے، وہ آئیں گے اور کلام کے لیے دعا کریں گے، خدا کے بندہ کے لیے دعا کریں گے۔ بشپ صاحب کے ساتھ لے کر خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں میں ترستے ہیں، ہماری روح تیرے کلام کی بھوکی اور پیاسی ہے۔ اپنے بندہ کو سر تپا لے، اپنا جلتا ہوا کولا اس کی زبان پر رکھ، سب کے لیے باعث برکت یسوع کے نام میں۔ تمام خادم پریکٹیکل ہیں، بہت سے ہم میں سے تعارف کراتے کہ میں چھوٹا خادم، میں جو آپ کے سامنے ٹھہرا میں بھی اسی طرح جیسے آپ ہیں۔ اگر میرے ساتھ بشپ کا ٹائٹل آ گیا تو میں کسی اونچی سیٹ پہ نہیں چلا گیا۔ پہلے میری بھی خدمت روحیں بچانا ہے، انجیل سنانا۔ اگر میں یہ نہیں کرتا، اگر میرے پاس یہ خدمت نہیں ہے تو یہ سارے ٹائٹل کسی کام کے لیے۔ ہمیں ضرورت ہے منادی کرنے کی، بشارت کرنے کی۔ جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے فالوور ہیں، وہ خود منادی کرتا تھا، گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں، دور دراز جا کے، تو اسے مناد بھی کہا گیا ہوگا، منادی کرنے والا تھا۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم لفظوں سے نہیں، عمل سے دکھائیں گے۔ ہمارا عمل بتائے کہ ہم واقعی ادنا ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا نے ہر ایک کو عزت دی ہے، بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن ہم تو سب خادم ہیں، ہم نے کلیسیوں کو سکھانا ہے۔ میں پاسٹر آصف جان کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت لیڈ کی، پریزائڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کلیسیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جوش سے گاؤ، تالیاں بجاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور ہم جب ان سے ڈیمانڈ کرتے، آج ہماری باری ہے تو ہم ٹھڈے پڑ گئے، ہم سست ہو گئے۔ جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں خود کیوں نہ کریں؟ جو کسی سے کہتے ہیں پہلا ہمارا کام ہے وہ کرنا اور کر کے دکھانا۔ تو آج پروفیسر صاحب کے لیے پہلے ہی ایک مثال کے طور پہ کہنے لگا، اور اسے یاد رکھیں گے کہ ایک پاسٹر تھا، اس کے گھر ایک وزٹنگ پاسٹر آ گیا، اور اس نے اس کے لیے یقیناً جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، چائے پانی کا، کھانے کا۔ تو کھانے کا اہتمام ہوا، اور اچھی گفتگو کرتے ہوئے ہوسٹ جو تھا خادم، اس نے اس خادم سے کہا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنے آپ کے پاس خدمت کرنے والے لوگ ہیں؟ اس خادم نے کہا کہ 300 کے قریب لوگ ہیں۔ پریشان میں چھوٹا تھا، اس سے پریشان تھا، بڑی بات ہے 300۔ اس نے کہا پھر تو آپ کے ساتھ بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ جی بہت اچھی، اور بھی خواہش مند ہو، میں سنوں کیا؟ اس نے کہا 150 جو ہے نا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں، 150 میرے ساتھ چلتے ہیں، اور 150 جو ہے وہ میری مخالفت میں ہے۔ جب آپ کام کریں گے تو 50-50 کا ضرور رکھیے گا۔ آج ہم یہاں ہیں تو ہم کہیں گے، لیکن جب باہر جائیں گے بہت سی نکتہ چینیاں کریں گے، ہر ایک کے بارے میں کریں گے، پریزائڈ کرنے والے کے لیے کریں گے، ورشپ کرنے والے کے لیے کریں گے، کلام سنانے والے کے لیے کریں گے، ایک دوسرے کے بارے میں کریں گے، تعارف کروانے والے کے لیے کریں گے۔ اور یہی چیز رفاقت میں ختم ہونی چاہیے۔ رفاقت اس لیے کہ ہم سب ایک جیسے ہوں، ایک، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو بہت چھوٹا نہ سمجھے۔ ہم مسیح میں کیا ہیں؟ ایک جیسے۔ آمین آمین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ چلنا ہے، جانا ہے اس رفاقت میں، اور جیسا اناؤنس کیا گیا کہ ہر مہینے کے 30 جمعے کو یہ رفاقت ہوا کرے گی،
तो खुदा ने उन्हें खैमा इज्तिमा बनाने के लिए नहीं कहा कि वो उठाएं और खेड़े हो जाए। यहीं पे हर महीने के तीसरे जुमे को ये मीटिंग हुआ कर, इसी जगह पे। जितने खादम खास तौर पे प्रॉपर जो है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और बाहर तो उन्होंने इनवाइट करने ही करते हैं। समटाइम हम कहते हैं अब मैं हूँ, मैं उन्होंने तार किया मैं टीचर, मैं पास सब इस तरह करो, हम मेरे बल रख लो अगले महीने। ये जिसको खुदा ने बोझ दिया है, जिसने लिया है, वो इसका हकदार है कि वो उसको लेके चले, और हमारा काम है साथ साथ चलना, सपोर्ट करना। अभी आपने क्या किया है दुआ में कूंजे, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, कूंजे ऐसे विंग में चलती हैं, दो विंग होते हैं और उनका लीडर आगे होता है, लीडर आगे होता है, और इस तरफ का लीडर और इस तरफ का लीडर जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने विंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सामने आगे लीड कर होता है वो साइड नहीं चेंज कर सकता, वो आगे। लेकिन पीछे जो जा रही होती कूंजे, वो एक आवाज निकालती, होम 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 होम। वो क्या होम क्या है? फिक्र ना कर, हम तेरे पीछे हैं, तू आगे चलता रहे। आज हमने यहाँ आखिर में ये होंग होंग की, और ये होंग होंग जारी रहनी चाहिए हमें इस मकसद के लिए जिसके लिए हम इकट्ठे, इस पर्पस के लिए, क्योंकि ये विजन, ये बोझ यूहन्नाबाद में खुदा ने अपने खादम प्रोफेसर प्रेस को दिया, वरना हम सारे कह सकते नवी जी बोझ है। मेरा भी दिल कर गया, किसी का मुंह सुर्ख देख के दो चंडा अपने मुंह से मार के लाल कर ली तो वक्री गल, लेकिन असली वही होता है जिसका रंग सुर्ख हो। तो आए आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं ये कहूँगा कि मुझसे बेहतरीन उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, बेहतरीन खिदमत करने वाले बैठे हैं, बेहतरीन बोलने वाले बैठे हैं, बेहतरीन दुआ करने वाले हैं, और बेहतरीन लीड करने वाले हैं। लेकिन जो मुझे खुदा ने दिया है, जो मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज जो इब्तिदा है वो है वर्स, साहब ने आपको बता दिया, आपके सामने लिखी हुई है, और मेन पर्पस है रफाकत। इसका रफाकत क्या है? याद रखें, रफाकत के मुख्तलिफ मकामात हैं। पहला आलमगीर कलीसिया रफाकत है, फिर मकामी कलीसिया में रफाकत, फिर मखसूस भाइयों की रफाकत। आप रफाकत से कैसे बेहतर तौर पर पुरलुत्फ हो सकते हैं, आज ये सीखें कि रफाकत से आप पुरलुत्फ कैसे हो सकते हैं। ऐसी रफाकत जो भाइयों के लिए मुनासिब प्रोग्राम रखे, आमीन। वो रफाकत जो भाइयों के लिए क्या रखे, मुनासिब प्रोग्राम, जिसमें वो लुत्फ अंदोज हो, बैठे दुआ करें, प्रस्तश करें और खुदा को जलाल दें। तो पहला पॉइंट है, मसीह में सब एक है। मसीह में क्या है? सब एक है। मसीह रफाकत मसीही जिंदगी का एक लाजमी जुज है, और मसीह का मतलब ये है कि मसीह के बदन के आम जिंदगी में शरीक किए जाए, यानी शराकत की जाए। और अमाल की किताब के इब्तदाई अबवाब अगर देखें, आप पढ़ें, तो मसीह कलीसिया की बड़ी दिलकश तस्वीर कशी की है, इसमें पिक्चराइज किया गया है। अमाल दूसरा बाप उसकी 44 आयत। वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, एक जगह, एक मकाम, एक इतना, और सब उसमें शरीक थे। मिलकर दुआ मांगते और काम करते थे, दुआ करते और क्या करते, काम करते, यहां तक वो एक दूसरे की मलकियत में भी शरीक थे। जो हासिल था, इब्तदाई कलीसिया की बात बता रहा हूं, एक दूसरे के साथ वो शराकत करते थे। और पाक रूह जो बड़ी कुदरत से उन पर नाज़िल हुआ था, उसने उनमें पाक रूह की रफाकत कर दी। बेसिकली रफाकत के लिए जो नीड है वो पाक रूह की। जब तक हमारे दरमियान पाक रूह काम नहीं करेगा, होली स्पिरिट काम नहीं करेगा, हम वो रफाकत नहीं रखेंगे जो खुदा चाहता है। इंसानी अक्ल वाली हो सकती है, इंसानी समझ वाली हो सकती है, बेहतरीन रफाकत करवाना पाक रूह का काम है। और हम उसी को भी मांग रहे थे, हम उसी को यहाँ पे पुकार रहे थे। हमें सिखा, हमें बतला, हमें याद करा। और यहाँ ये भी कि उसने अपने आप को खुशी
اور شراکتی زندگی، عام زندگی اور کلیسے زندگی میں بڑی قدرت سے ظاہر کیا۔ کس نے؟ پاک روح نے۔ مسیح خدا نے بذات خود اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ اس کے ساتھ ان کا رشتہ ایسے ہے جیسے ڈالیوں کا انگور کے درخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آمین۔ لہذا ڈالیوں ہونے کی نسبت سے وہ ایک دوسرے میں کیا تھے؟ پیوست ہو۔ ہمیں ایک دوسرے میں آج پیوست ہو رہے، جیسے ابھی دعا کی گئی اور کہا آئیں کیا کریں، ایک دوسرے کا کیا پکڑے؟ ہاتھ پکڑے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم یگانگت کو شو کریں، رفاقت کو شو کریں، اور سب اسی زندگی میں شریک تھے۔ اس وقت اسی زندگی میں شریک تھے جو انہوں نے مسیح سے حاصل کی، جنہوں نے شاگردوں اس میں جو انگور کا حقیقی درخت تھا صرف اس وقت ہی قائم رہ سکتے تھے جبکہ وہ اس کے نئے حکم پر عمل پیرا ہو گئے۔ بہت سے حکم آئے، 10 احکام آئے اور حکم آئے، لیکن یسوع نے ایک نیا حکم دیا تھا، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ویسے تم بھی ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ رفاقت کا بہترین جو حل ہے وہ محبت میں۔ اگر ہماری آپس میں محبت ہوگی ہماری رفاقت بڑھے گی۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو نیچے کھینچ کے کریں گے۔ کیکڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کو دوسرے جگہ بھیجا جاتا تو ان کے لیے کوئی پیکنگ نہیں کرتے، انہیں کھلے باسکٹ ٹائپ ڈرم ان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ ریپ کرتے، کیوں نہیں باندھ کرتے؟ اصل میں ان کی نیچر ایک ہے، وہ کیا ہے، وہ جب وہ نیچے سے چلتا ہے اور اوپر آتا ہے اور یہاں آنے لگتا ہے تو دوجا کیکڑوں دی لات کھینچ دیتا ہے، اپنے آپ ہی تھلے ڈگ پیتا ہے۔ تو یہ ٹانگیں کھینچنے والی جہاں بات آ جائے وہاں رفاقت ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ایک دوسرے کے حوصلہ بڑھانے کی بات ہے، آج ایک دوسرے کی منسٹری کو بہتر کہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے بشپ آصف صاحب مجھ سے بہتر ہے، وہ پاسٹر اشرف کو کہیں، جو بھی آپ کے پاس اس کے، آپ مجھ سے بہتر خدمت کرنے والے ہیں، تاکہ ہم اپنے سے دوسرے کو کیا سمجھیں؟ بہتر سمجھیں۔ اور یہ بہتر کون بنائے گا؟ محبت بنائے گا۔ یہاں مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس طرح اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم ایک دوسرے سے بھی الگ ہو کر کچھ نہیں۔ پھر بعد میں خدا یسوع مسیح نے دعا مانگی تھی جو بڑی مشہور دعا ہے، یوحنا 17 باب کی 23 آیت، بڑی مشہور ورس ہے اور خدا یسوع مسیح کی ہوئی دعا ہے، شفایتی دعا ہے۔ لکھا 23 آیت، وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا ہو جائیں؟ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، رفاقت، یگانگت۔ اور دنیا کبھی بھی انجیل کی خوشخبری کی حقیقت کو قبول نہیں کرے گی، یاد رکھیں، دنیا کبھی انجیل کو قبول نہیں کرے گی تا وقت اس کے شاگرد ایمان کی یگانگت اور محبت میں ایک نہیں ہو جاتے۔ ہماری یونٹی، ہمارا اتحاد، ہماری رفاقت، ہمارا میل ملاپ دنیا کو مجبور کرے گا کہ وہ مسیح پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ابھی ہم نے بہت سی ملکی دعائیں کی ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کی ہیں، کلیسیوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم ایسا کریں گے تو کلیسیاں خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے، خادم خدا کی قدرت سے بھر کے استعمال ہوں گے۔ رسولوں نے اپنے خدا داکا کے اس خیال کو اور بھی مختلف طریقوں سے واضح کیا اور کہا مسیحی جو ہیں، بلیور جو ہیں، ایماندار ہیں، ہم پہلے بلیور ہیں، بعد میں خادم ہیں، بعد میں ہم کچھ ہیں۔ مسیح زندگی، زندہ مسیح زندہ پتھر ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم مسیح جو ہیں وہ زندہ پتھر ہیں، مردہ نہیں ہے۔ کل ورشپ میں نے ایک ایگزامپل دی، ہماری میٹنگ ہوتی، میں نے اس میں بتایا کہ مردہ مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ بہاؤ کے چلی جاتی جس طرح بہاؤ لے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے جس طرح، لیکن جو زندہ مچھلی ہوتی ہے
वो अपना रुख इख्तियार करती है, वो चलती है अपने रुख में चलती है। हम जिंदा हैं, हम उसी में जिंदा हैं। और आज ही नहीं, हमसे तो वादा किया गया तो मर कर भी क्या रहोगे, जिंदा रहोगे, फिर भी हम जिंदा हैं। हमारे पास जिंदगी का पैगाम है, जिंदगी की जो बातें हैं हमने वो लोगों को बताया। अब रसूलों और नबियों की नींव पर हम वहां मिलकर एक इमारत तामीर हो जाते हैं। अब हम एक इमारत बन रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रहे हैं, हैकल बन रहे हैं, खुदा की बिल्डिंग बन रहे हैं, सारे मिलकर। ये सब पत्थर हैं, हम सब एक एक पत्थर है जिंदा बन, और खुदा की जीती जागती हैकल है। हर एक के अंदर यीशु है, हर एक के अंदर। क्या तुम नहीं जानते बच्चों, याद रखो जो तुम्हारे अंदर है उससे कहीं बड़ा है जो इस दुनिया में। हम सब अपने अंदर यीशु को रखते हैं। यीशु मेरे यीशु मेरे दाएं बाएं, यीशु मेरे अंदर है। वो हमें घेरे हुए हर समझ से, दाएं बाएं से भी, ऊपर से भी और अंदर से भी। हम उसकी वो हैकल हैं जहां उसको हमने काम करने देना है। यहां पे पाकरू उसको उन्नत करता है, क्योंकि पाकरू ने जगानगत को बढ़ाना है। अगर हम पाकरू को मौका देंगे तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। तो इफिसियों 2 बाब उसकी 19 से 22 आए, और पतरस उसका 2 बाब उसके 5वीं आए। यहां दोनों वाज़े कर रहे हैं कि वो सब मसीह के अज़ा है। क्या है? अज़ा। एक जोड़ की मदद से पेवस्त और इकट्ठे हो, यानी एक जोड़ की मदद से क्या है, पेवस्त भी है और जुड़े हुए भी हैं। और इफिसियों 4 बाब उसकी 16 है लिखा, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं हूं। हमें एक दूसरे को आज ये न कहे कि नहीं मैंने तेरी जरूरत नहीं। हमें वर्शिप की जरूरत है, वर्शिपर की जरूरत है, हमें रिजाइड करने वालों की जरूरत है। यहाँ पे वो लोग हमें मिले जो सब खुदा के साथ चलने वाले, और हम सब मिलके खुदा उनको जलाल देने वाले। आमीन। तो देखें पहला कुरिन्थियों उसके 12 बाब की अगर 12 से 31 आयत आप पढ़े, उसमें आपको मिलेगा हमारा आपस में ताल्लुक बहन वही जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का आपस में, हमारा भी वही ताल्लुक है जो जिस्म में हर एक उज़्व का है, हर अज़ा का है। मैं जब आके यहाँ बैठा हूँ तो मेरे दाएं बाएं पास्टर रोबन और पास्टर पीटर जे डैनियल जब बैठे तो मैं दुआ में था। मैंने जब आंखें खोली तो मैंने बड़ी तकलीफ महसूस की। आप हैरान होंगे किस बात की कि दोनों खादम बड़ी कमजोरी की हालत में गए, दोनों को फालज हुआ और दोनों ही उसमें से शिफा पा गए, और अपने कमजोर बदन के बावजूद आज हमारे दरमियान हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं उनके दरमियान उनसे भी ज्यादा कमजोर हूं। खुदा कैसी बात है, कैसी जगान तूने इकट्ठी की। हम कमजोरों को तूने इस लायक बनाया, हम तेरा जोर बांध के लोगों के सामने खड़े हो सकते, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते। गुजरे साल इन्हीं दिनों में मैं कैंसर की आर्जा से, जिगर के इसमें से निकल के आया, जिसके लिए खुदा ने मुझे कामल शिफा दे दिया और कलाम भी हुआ। और मैं पहले जिन्होंने मुझे इस हालत में पिछले साल देखा वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसे था। मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा अपने खादमों को छोड़ता नहीं है, कमज़ोर नहीं रहने देता, हमेशा जोर आवर करता है। और जो कमज़ोर है वो आज के मैं जोर आवर। हालेलुया। कमज़ोर क्या कहे, मैं क्या हूँ, किसमें, खुदा यीशु मसीह में। और मसीह भाइयों की जगानगत की जो सबसे बड़ी और उम्दा पहचान और रफाकत है वो शायर बानी है। इस शायर बानी में बहुत उम्दा पैराए में ज़ाहिर की गई है। पाक शराकत हमें ज्यादा रफाकत में रखती है। एक प्याला, प्यालियां नहीं, अंग्रेज नहीं बनना, एक दूसरे को छूत नहीं समझना। समटाइम अबलीस हमें से खिदमत करने वाले शायद आप कहें कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अबलीस हर एक के अंदर से बोलता है काम का। अगर खुदा का रूप होता तो अबलीस भी होता है। जब आप कलीसिया को पाक शराकत दे रहे होते तो आपके सामने कई कमजोर, कई बूढ़े आ रहे थे और
प्याले जो ये नहीं पीना, ये भी पिएगा, इसके बाद मैं पियांगा, आज मैं पी। एक तो आज कोरोना ने बहुत से लोगों को डरा रखा, और इस डर से भी कईयों ने प्याले को छोड़कर प्यालियां शुरू कर दी। अगर हम मर रहे हों, हम कमजोर हों, तो क्या मांगते हैं? लहू मांगते हैं ना। वो हमें क्या देता है? शिफा देता है, तकवीर देता है। कोरोना तो बचन ली असी प्याले खून भरा कर दें, लहदा लहदा कर पानी देने। तो ये सबसे बड़ी रफाकत है कि आज हम सब भाई एक प्याले में से पिएंगे। ये हमारी ईमान देखो, जैसा यीशु ने हमें नमूना दिया, ये हमारी काट की रफाकत है। यहाँ से हमें पता चलेगा हम एक दूसरे से क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये हमारे लिए उम्दा एक पैरा है जो खुदा ने हमें बताया। पहला कुरिन्थियों के 10वें बाब की 17 है। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब 17 है। चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन है। तोड़ी जाने वाली रोटी एक है, लेकिन हम क्या है? बहुत है, लेकिन मिलके इसी का क्या है? बदन है। हम सब एक हैं। और नए अदामा में तन्हा मसीह का जिक्र नहीं मिलता, किसी अकेले मसीह का जिक्र नहीं मिलेगा आपको। अलग से रहने वाला मसीह नहीं हो सकता, अलहदगी पसंद मसीह नहीं हो सकता। ये मसीह तरीका के बरक्स है। अज्तमाई जिंदगी से रफाकत का नाम दिया। अज्तमाई जिंदगी जिसे कौन सा नाम दिया? रफाकत को रद्द करना मसीह को रद्द करने के मुतराद है। अगर हम रफाकत को रद्द करते हैं तो हम किसको रद्द करते हैं? मसीह यीशु को रद्द करते हैं, क्योंकि हम उस वक़्त तक मसीह के वसीला से खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकते। उस वक़्त तक मसीह के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकते तब वक्त है कि हम दूसरे से मेल मिलाप ना रखें। पहले हम आपस में मेल मिलाप रखेंगे, देन हमारा मेल मिलाप किससे होगा? यीशु के साथ होगा। आमीन। इलाही इंतजाम ये है। इफ्सियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत, मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए। मसीह में सब चीजों का क्या हो जाओ? मजमुआ हो जाए। और यहाँ पर तन्हा पसंद अफराद की निजात का सवाल नहीं है, किसी एक अकेले शख्सी निजात का सवाल नहीं, बल्कि एक नई जमात, एक नया प्लान, एक नया मंसूबा, एक नया मकसद, एक नया विजन। भाई इकट्ठे हो जाए, खादम इकट्ठे हो जाए, रफाकत रखें, यगानियत रखें, एक जगह बैठे, एक प्याले में से पिए और इकट्ठे मिलके आपस में जो भी बातचीत हो, एक दूसरे की हौसला अफजाई की बात। पाक कौम क्या कहलाए? पाक कौम और शाही कायनों का फिरका। हालेलुया। हम सब जितने मसीह के खाए, हम शाही कायनों का क्या है? फिरका। कितनी बड़ी एजाज की बात है। कोई भी छोटा नहीं है, सब क्या है? एक ही जैसे। लिहाजा रफाकत न सिर्फ मसीह जिंदगी का एक हिस्सा है, बल्कि बजाते खुद मसीह जिंदगी है। आमीन। दूसरा पॉइंट है जमा होना। अगर खुदा की मर्जी ये है कि भाई मसीह एक दूसरे से रफाकत रखें, तो उन्हें यकीनन जमा होना पड़ेगा। खुदा की विल है, खुदा की मर्जी है, और भाई हैं हम। खादम क्या है? भाई है। एक दूसरे से रफाकत रखें तो फिर उन्हें यकीनन क्या होना पड़ेगा? जमा होना पड़ेगा। उन्हें एक मकाम पर जमा होने ही को रफाकत रखना कहते हैं। एक जगह। मैंने शुरू में कहा, जिसका विजन है, जिसका बोझ है, उसी के पास हमने सबने आना है। और कब आना है? जो उन्होंने बता दिया, हर महीने के तीसरे जुमे को। और यही आना है, यही मकाम है, यही जगह है। यूहन्नाबाद में खुदा ने खादमों को इकट्ठे करने के लिए कहा। तो हम आज से ये सोच के, ये इरादा करके यहाँ जाए कि दोबारा भी जगह हमें बुलाया जाए। हमने ये नहीं पूछ रहे कितने आना है। अक्सर हम पूछें आज किधर है, हमें मालूम हो कि कौन से मकाम पे है। सेव लास्ट चर्च, जिसके खादम
परवेज खोकर साहब और वो यूहन्ना बाद। आमीन। रफाकत की सबसे उम्दा तारीफ खुद खुदा यीशु मसीह के अल्फाज में है और अभी प्रेयर में की गई, अभी दुआ में कहा गया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे, मेरे नाम से, कौन से नाम से? यीशु नाम। कौन से नाम? बोलो यीशु तो बोलो। यीशु नाम तो हम लोगों को कहते बोलो जी, शिफा लो, निजात लो, रिहाई लो। फिर मुझे पास्टर आसिफ जान साहब की बात असी बोलने कहने करवाने, एक दफा फिर बोले किस नाम से? यीशु नाम से करते हैं। आमीन। वहां मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। आज चीफ गेस्ट कौन है? यीशु। मेहमान खुसूसी कौन है? यीशु है। हम सब उसके हुजूर बैठे और उसी को देख रहे हैं। ये वर्ष जो थी, जो मैंने बोली मत्ती 18 बाब की 10वीं आयत में से, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं। मसीह ने वादा किया कि वो सचमुच उन लोगों के दरमियान मौजूद होगा जो उसके नाम पर जमा होते हैं। इसलिए मैंने बार बार बुलवाया, उसके नाम पे, किसके नाम पे इकट्ठे हुए? उसी के पास रेस को करते नाम, जगह उनकी है, चर्च उनका है, विजन उनका है, लेकिन हम सब किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? यीशु के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर ये भी कहा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ऐसा वादा कोई दुनिया में नहीं कर सकता। देख लो, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज छोड़ जाते हैं। अभी खुदा के अजीम बंदे का नाम दिया गया जो ज़बूर नवीस है, वो क्या कहता है? शायद मेरे माँ बाप मुझे, लेकिन मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़। हम बेवफा हो सकते हैं, लेकिन तो भी वो हालेलुया। हमें ये जानना है, ये उसके वादे हैं और सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। हम उसी के नाम पे यहाँ जमा हुए, क्योंकि यहाँ वो हमसे क्या कर रहे हैं? मुलाकात। हमने तारफ करवाया, यकीन करवाया, यहाँ पे हुआ, लेकिन सुन कौन रहा था? यीशु। जान रहा था मेरा बेटा, मेरा भाई कहाँ पे खिदमत कर रहा है, कौन से इलाके में, कहाँ पे इसकी खिदमत है। और खुदा चाहता है बेटे बेटियां मिलकर खुदा की खिदमत करें, यीशु नाम की खिदमत करें। और यही रफाकत का सबसे बड़ा सबब है, इकट्ठा होना, जमा होना। किस नाम में? यीशु। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, ये भी कहा, जमा होने से बाज ना आए। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देने लगा। मसलन क्या ये मुमकिन है कि हम फौज में तो हों, किस में हो? फौज में तो हों, लेकिन किसी यूनिट से मुतल्लिक ना हो? क्या अखवान फौजी हैं, कोई यूनिट नहीं है? पॉसिबल नहीं। आप ऐसे नौजवान के बारे में क्या कहेंगे जो नेवी में भर्ती तो होना चाहता है, मगर कहता है मैं किसी जहाज में काम नहीं करूंगा, मैं नेवी में भर्ती होना चाहता हूं लेकिन जहाज में काम नहीं करूंगा। नेवी का काम कहते चे पानी ते की चलता है, जहाज चलता है। और किसी शख्स को किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं नहा रहे, आप तैरे कहीं पिकनिक करने के लिए नहर का किनारा। उसने कहा नहीं, जब मैं तैरना सीख लूंगा तो फिर मैं अंदर घुसूंगा। और खुशकी के फिर कभी कोई तैर सकता है? अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा ना। आज हम आए हैं इकट्ठे हुए, हमें पता चल रहा है रफाकत कैसी, एक दूसरे को बताएंगे रफाकत कैसी। कोई बहार कॉलोनी में, कोई मियाँ मीर में, कोई यूहन्नाबाद में, कोई नवाज शरीफ कॉलोनी में, कोई जहाँ जहाँ से आप आए, आप सब बताएंगे, चूंकि अमर सद्दू वाले बताएंगे हम एक रफाकत से आए। ये खुदा का एक इंतजाम है कि हम आज बता रहे हैं हम एक यूनिट में हैं और एक ही जहाज के क्या हैं? सवार हैं। एक यूनिट है और एक ही जहाज के सवार हैं। हम यहाँ इसलिए शामिल हैं क्योंकि खुदा की मर्जी यही है।
खुदा की मर्जी यही है कि हम एक दूसरे से क्या रखें, रफाकत रखें। आए भाइयों का जमा होना 3 मकसद के लिए, 3 मकासद है जिसमें भाइयों का इकट्ठा होना, खादमों का इकट्ठा होना। नंबर 1, मिलकर इबादत करना। जब इकट्ठे हो क्या करें, इबादत। रफाकत खुदा की परस्तिश करने के मार्ज वजूद में आई। जैसे खुदा ने इंसान को वजूद दिया, बनाया, तो उसकी ख्वाहिश थी ये इंसान उसकी क्या करे, परस्तिश करे, इबादत करे, उसकी बंदगी करे। और पहला पतरस उसके 2 बाब की 5वीं आयत में पतरस को कहते हैं, रूहानी घर बनते जाओ ताकि रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ। रूहानी घर बनते जाओ ताकि क्या चढ़ाओ, रूहानी कुर्बानी। यहाँ पे हमें रूहानी कुर्बानी चढ़ानी है, वो इज्तिमाई परस्तिश है। रूहानी कुर्बानी जब यहाँ पे पहली जो सेशन था परस्तिश का, जब बड़ी पुरजोश वर्शिप हो रही थी, मैं देख रहा था सब खादम एक दिलों के गा रहे और नाच रहे, और क्यों ना पाओ फिर लुटियां भी डाल रहे थे। ये रफाकत, सबका एक जैसा हो जाना, ये भूल जाना कि दाएं बाएं कौन है, बड़ा है छोटा है कौन है, नहीं। हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करें, परस्तिश करें। और ये उन लोगों की परस्तिश है जो मसीह पर ईमान लाकर मसीह के बदन की तरक्की का बायस। प्रोफेसर परवेज कोकर साहब ने कहा, आज मैंने इस इकट्ठ को, इस रफाकत को इसलिए यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि मसीह का बदन क्या करे, तरक्की। ये मेरी बात को जरूर, क्योंकि मैं अपना सा टीचर भी हूँ, मैंने मैरलन हिकी को स्टडी किया। उसने कहा कि जब आप इकट्ठे होते हो, चर्च में इकट्ठे होते हो, चर्च को उसने कहा तो आप वो गीत मत गाएं जो आम लोग नहीं गा सकते, वो आपके साथ गाएंगे नहीं। परस्तिश क्या होगा, अगर गाना ही चाहते हुए गीत तो सब में क्या कर दो, रिटर्न तकसीम कर दो, ताकि सारे एक रूह हो जाए, सब एक हो गए। और जब सब एक होके गाते हैं, सबका मुंह खुलता है, तो आसमान भी खुलता है। इससे हमारी तरक्की और इस किस्म की परस्तिश की मिराज का सबसे उम्दा इजहार उस इबादत से होता है, उस इबादत से। फिर मैं अगेन कहने लगा, जहां शायर बानी होती है, जहां क्या होती है, शायर बानी होती है, जो एक तरफ खुदा के साथ रफाकत है और दूसरी तरफ मसीह में एक दूसरे के साथ। परस्तिश खुदा की जा रही थी और बदन मसीह यीशु का, दोनों के साथ हम हैं, बाप और बेटे से। मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है, मैं तुम में हूं, और हम एक हो जाएं। आमीन। बाप के साथ, बेटे के साथ, और आपस में हम क्या हो जाएं, एक। यह परस्तिश। और दूसरी तरफ मसीह में एक दूसरे के साथ रफाकत। और इसी तरह कलाम को फैलाने की खिदमत का मकसद, अगर हम कलाम को फैलाना चाहते हैं तो भी रफाकत को तामीर करना है। रफाकत ही से कलाम की आगे तरक्की, ना कि तन्हा पसंदी। मैं अगेन इस लफ्ज को इस्तेमाल करूं कि एक शख्स खुद से कितने लोगों को सुना सकेगा, कितने लोगों को बना सकेगा। हम मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, दूसरों को तैयार करेंगे, और फिर खुदा की बातचीत में वुसअत पैदा होती रहेगी। IPLI मैं उसके लिए प्रेयर करता रहता हूँ, मेरे पास उसका प्रोग्राम आता है प्रोफेसर साहब के जरिए, और मैं खुश होता हूँ कि ILI जो बिशप यकूब पाल साहब की मिनिस्ट्री और करवा रहे हैं, इन दिनों सियालकोट गए हुए थे, हम दुआ कर रहे थे। इस तरह हम जब एक दूसरे का बोझ लेंगे, एक दूसरे की दुआ करेंगे, तो खुदा का काम क्या होगा, तरक्की पाएगा, कलीसिया तरक्की करेगी। हमें एक दूसरे को दुआ में याद रखना है, एक दूसरे के प्रोग्राम को याद रखना है, एक दूसरे की दुआ करनी है। अगर तन्हा होंगे तो हमें पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अपने ही उसमें। रफाकत इसलिए है कि रूहानी परस्तिश की कुर्बानी गुजरानी जाए। किस चीज की कुर्बानी गुजरानी जाए, रूहानी परस्तिश।
लिहाजा खादम बुनियादी तौर पर एक इज्तिमाई परस्तश करने वाले लोग हैं। खादम है बुनियादी तौर पर इज्तिमाई परस्तश करने वाले लोग हैं। हर खादम परस्तश करने वाला है। मैंने ज़्यादा ज़बूर जो सीखे हैं अपने उस्ताद मोहतरम पादरी पीटर जे डैनियल, मेरे ये उस्ताद हैं, आप हैरान होंगे, मेरे भी कुछ उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी बहुतों ने कहा, इन्होंने मुझे कलाम सुनाने के लिए यहाँ तक पहुँचाया, परस्तश करने के लिए, और जितने ज़बूर गाने के लिए मैंने इनसे सीखे, क्योंकि हमेशा ये गीत गाते, ज़बूर गाते, और मुझे इन्होंने एक ही काम दे, कलाम तुझे सुनाना तैयार है। मैं आज खुदा का शुक्र करता हूँ उनके लिए, मेरे साथ हैं, मैं उनको अपने साथ देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत आदर। अगर सीखने के उस्ताद है तो मेरे उस्ताद डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, मैं उनका शुक्र, मैंने उनसे सीखा। तो यहाँ हम ये कहें कि खादम खुद बुनियादी तौर पर क्या है? परस्तार है। अच्छा खादम वो है जो खुद परस्तश करना चाहता, खुद गाना, खुद लीड करते वक्त गाना, और फिर वो चाहेगा कि दूसरे भी ऐसे ही गाएं। लफ्ज नहीं होते, गीत जो रूह है वो अंदर से निकलता है, अंदर से वो परस्तश। और दूसरा पॉइंट हमारा एक दूसरे की मदद करना। पहला था इबादत करना, दूसरा एक दूसरे की मदद करना। हम तमाम मसीह के बदन के अज़ा हैं, इसलिए एक दूसरे उज़्व भी हैं। जिस तरह जिस्मानी अज़ा एक दूसरे के मुताज और मददगार हैं, क्योंकि एक हाथ मैंने बताया वो कान से नहीं कह करके तुम मेरे लिए क्या, हर एक उज़्व दूसरे के लिए क्या है? कारआमद है। उसी तरह हम भी, हमारी जिम्मेदारी, आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे की तामीर और तरक्की का बायस बने, दूसरों की तरक्की का बायस बने। जहाँ इकट्ठे वहाँ जाए, जहाँ रफाकत वहाँ जाए, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, आगे मिनिस्ट्रियाँ खिदमत में बढ़ती जाए। यहाँ ये इकट्ठे होने का मकसद उन्होंने नहीं रखा कि आप यहाँ आए तो मेरी तरक्की हो, उन्होंने आपकी तरक्की के लिए इकट्ठा किया। देखिए यहाँ पे बोझ जाएगा, आप दरख्वास्त देंगे, आपने अपने साथियों को बताएंगे, मैं ये करने वाला हूँ, सारे मिलकर क्या करेंगे? दुआ करेंगे, तो कलीसिया की क्या होगी? तरक्की होगी। और यहाँ मैं ये कहूँगा, नए अहदनामा में एक बड़ा ही प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिलदिल्फिया। नए अहदनामा में एक लफ्ज़ है फिलदिल्फिया, जिसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? कौन सी? भाइयों की, खातों की, आपस की मोहब्बत। और इस किस्म की मोहब्बत इब्तदाई भाइयों में बड़ी शिद्दत से कार फरमा थी। इब्तदाई कलीसियाँ इससे भरी हुई थी, मोहब्बत से भरी हुई थी, बरादराना मोहब्बत से भरी हुई थी। और वो आपस की मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? आपस की मोहब्बत के बारे में खुदा के हुक्म पर इस सख्ती से कार बांधते कि एक बुत प्रस्त उन्हें देखकर चिल्ला उठा। उनकी मोहब्बत को देखकर कौन चिल्ला उठा? एक बुत प्रस्त। देखो ये आपस में कैसी मोहब्बत रखते हैं। आज भी वो यहाँ दरवाजे खिड़कियों से कई जगह से झांक रहा है, फिर इकट्ठे हो गए। उसको तो पसंद नहीं हमारा इकट्ठा हो, लेकिन खुदा चाहता है हम क्या हो? देख क्या ही चंगी गल है, देखो सुहानी जब दिल दे नालो एक सलाह सपना बरामद। जब हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखेंगे, दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे, तो याद रखें हमारी मसीह जो है वो मेरी जाती मलकियत है, या यहाँ जो हम बैठे इनकी नहीं है, या फ्रंट लाइन पे बैठे इनकी नहीं है, ना जो सेंटर में बैठे उनकी नहीं है, ना जो पीछे, बल्कि ये मुश्तरका दौलत है। हालेलुया। मसीह क्या हमारी मुश्तरका दौलत। फिर एक नारा लगाए, हालेलुया हालेलुया। नहीं, मैं कुछ और लगवाने लगा, ये नहीं ठीक है। मैं कह लगा था कि जब मैंने कहा कि वो जाती मलकियत नहीं है, तो फिर आज की कट के मुताबिक होना चाहिए। मेरे पीछे बोली कलीसिया अपनी अपनी
यसू सब का साझा, कलीसिया अपनी अपनी, यसू सब का साझा, सब का साझा है। हालेलुया। बेशक मुफ्त हमारे चर्चेज हैं, कलीसिया अपनी खिदमत में, लेकिन हम मसीह में क्या है? एक है। हमारे पास ये नारा होना चाहिए, काम अपना अपना करो लेकिन मसीह को, मसीह में हम एक हैं, वो हमारी मुश्तरका दौलत है सबकी, और हम सब उसमें शरीक हैं। आमीन। लास्ट पॉइंट आज का तीसरा, मिलकर खिदमत करना। अगर 1000 सिपाही फर्दन बरसरे बेकार हो, यानी वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हो क्या अलहदा अलहदा, तो जंग में मौसर साबित नहीं हो सकते, कभी भी वो मौसर साबित नहीं होंगे। लेकिन अगर वो 1000 सिपाही मुतहिद होकर जंग करें तो एक मौसर क्या बन जाएगी? कुव्वत। क्या बन जाएगी? एक कुव्वत। आपको पता है कि इस मुल्क के बनाने वाले ने भी ये निशान दिया था, इसका क्या मतलब था? यूनिटी। हमें मसीह में एक होना है। असल में जो कलीसिया की तरक्की के 5 नेम थे, रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद। रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद, ये 5 हैं। और ये रसूल सब कुछ होता है, देख ले। नबी पॉइंट आउट करता है, इसका काम जैसे ही करना है, ये है वो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह खा ले, ये पॉइंट। मुबशर सबसे बड़ा, देखिए ये उंगली सबसे बड़ी है, ये दुनिया में फैल जाता है, जहाँ जाएंगे आजाद होते हैं, कहीं भी जाते हैं, बड़े दौलतमंद होते हैं, बहुत कुछ इनको मिलता है। ये जो है एक किसकी है? खादम, पास्टर की है। ये एंगेज करता है, जैसे शादी में 2 जोड़े को इकट्ठा किया, इसका काम है कलीसिया को क्या रखना। लेकिन ये क्या है? टीचर। मैं कभी भी ऐसी ना तो अंगूठे ने कड़ी ते ना असुमले जिधर भी कड़ी, उस्ताद तालीम साफ करा, अच्छी तालीम, इनका काम है बेहतर तालीम देना, इस उंगली का काम है। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएं तो ये पावर बन जाते हैं। अगर रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा, उस्ताद एक जगह आज यहाँ इकट्ठे हैं तो यहाँ एक स्ट्रेंथ है, यहाँ एक ताकत है, यहाँ एक कुव्वत है, और यकीनन अब्लीस को जलना ही होगा, इसको तो जलना होगा, सारे एक हो गए। यहाँ तो सारी खिदमतें इकट्ठी हो गई हैं, क्या बनेगा? याद रखें, इकट्ठ लोहे की लठ, अगर आप इकट्ठे हैं तो लोहे की लठ जैसे कहते हैं कोई तोड़ नहीं सकता, और एक मौसर कुव्वत है। इसी तरह जब हम भाई एक जगह जमा होकर जमात की सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो बड़ी फतह हासिल करते हैं, फतह मंदी आती है। तो आज से तैयार हो कि फर्दन नहीं बल्कि रफाकत में रहकर कलीसिया की तरक्की का बायस बने। रफाकत में रहकर कलीसिया की तरक्की का बायस बने। हमारा मिलकर बैठना मसीह के बदन की तरक्की का बायस है। आमीन आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे। फैसल कुकर साहब आएंगे, आगे का हिस्सा उनके पास है। सब दुआ के लिए सर को झुका लेंगे। खुदा तूने मेरे लिए मुमकिन किया, इंडिविजुअली कहिए खुदा तूने मेरे लिए मुमकिन किया, तू मुझे रास बाजू की जमात में लेकर आया है। तेरी पाक मर्जी ये है कि ये कलाम तेरा खुदा जो मेरे राह के लिए रोशनी, मेरे कदमों के लिए चिराग है, खुदा मुझे इसी में चलना सिखा दे, मुझे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखा दे खुदा, क्योंकि कलाम कहते हैं इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदा बीगे लीडर खुदा मुझे एक दूसरे के साथ उस कड़ी के अंदर परो दे खुदा, जिसमें तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। खुदा कादर मुतलक आसमानी पिता, हम सारे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने अपना फजल किया, तूने अपना रहम किया, हम सबको दूर और नजदीक से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है, एक जगह पर लेकर आया है, ताकि मिलकर तेरे कलाम को जाने, वर्शिप करें, स्ताइश करें, प्रस्तिश करें,
दुआएं करें और एक दूसरे का साथ बन जाए खुदा, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हो जाएं, एक दूसरे को खुदा हौसला देने के लिए तैयार हो जाएं, एक दूसरे को खुदा एप्रिसिएशन का सबब बन जाए। खुदावंद के खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सारे खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे कलाम की सुंदर बातों के लिए, अनमोल मोतियों के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादम के लिए, तेरे ममसू के लिए जिनकी वसासत से वसीला से तो हमसे बोला, तूने बात की, तूने कलाम किया। हम सारे मिलके इनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा, सेहत याबी और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे और कभी किसी चीज की कमी ना आए, तेरा फजल हमेशा में ठहर रहे। बड़ी बरकत हम सबको देना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रूहुल को उसके लिए जोरदार तारीफ का ये पाक सभी मिलकर रूहुल को उसकी कुदरत के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम सारे जो लीडर्स हैं एक जगह पे इकट्ठे होके खुदा के नाम को जलाल दे सकें। ये खुदा की कुदरत है और रूहुल कुद्स की हजूरी जो यहाँ पे मौजूद है, हम उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर अब वक्त होगा पाकिशा का, उसके बाद जो है चंद जरूरी अनाउंसमेंट हैं। खाना बिल्कुल रेडी है, उसके बाद हम खाना खाएंगे, रफाकती खाना खाएंगे, मिल बैठेंगे और गुफ्तगू होगी, बातचीत, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिएगा, एक दूसरे के साथ मिलिएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा। बुजुर्ग खादम मौजूद हैं, नौजवान हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिएगा, टाइम दीजिएगा एक दूसरे को। लेकिन उससे पहले वक्त होगा हम खुदा उनकी मेज के पास आएंगे। अगर रोटी तैयार है तो सामने ले आइए। और इस खिदमत के लिए मैं चाहूँगा बुजुर्ग खादम जो है पास्टर पीटर साहब जो है इस खिदमत को अंजाम देंगे, साथ मिलकर पाकिशा की खिदमत को। और बिशप साहब आप अगर साथ में आए, बुजुर्ग खादम जो है उसी की इस बड़ी कुर्बानी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अगर तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान ना होता, उसके बदन पर कोड़े ना बजते, उसका खून ना बह जाता, हम कभी भी ना तुझे अब्बा और बाप कहकर पुकार सकते। इस कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अब हम तेरे दोनों खादम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं, जो तेरे लोग तेरे बदन तेरे खून में शामिल होंगे, बड़ी बरकत है। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। तन से बह गया मुक्ति का लहू, तन से बह गया मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु आप उसी जगह पे दुआ में अपना वक्त गुजारिए। जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो अपनी जगह पे ही बैठें और दुआ में वक्त गुजारें, यीशु के खून की शुक्रगुजारी करते रहें। हालेलुया। तन से बह गया
भी तुझको मसीह कह गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मुक्ति का लहू तन से बह गया, हम रहेंगे तो आने से शामिल हो तन से बह गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। अगर जमायत में कोई रह गया तो मौका है। आज चंद लम्हे जो है वो दुआ में गुजारिए, आंखें बंद कीजिए और दुआ करते रहिए। चंद लम्हे दुआ में गुजारिए। बिशप तौकीर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो सामने आएंगे। बिशप तौकीर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो सामने आएंगे और खुदा उनके बदन के लिए, खुदा उनकी जिस्म के लहू के लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करेंगे। इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन ने हमारे दांत धब्बे झुर्रियां धोने के लिए हमें अपने लहू से खुदावन ने पाक करना पाक किया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आंखें बंद कीजिएगा, हम दुआ मांगेंगे। खुदाए असीम, खुदा रहीम, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नाज़री, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और एक खुदावंद शुक्रगुजार है
तेरे कलाम के लिए कि तूने अपने कलाम को अपने लोगों में मी की तरह बरसाया। और ए खुदावन, जैसी जैसी जमीन थी जिन्हें तू इसमें शामिल करे, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, तेरे मंसूब के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर प्रवेश साहब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्हें तुमने वियन दी। हम सब उनकी वियन में शामिल हैं और एक खुदावन दिल से इल्तिजा करते हैं कि खुदावन बहुत सारे खादमीन को, ऐसे खुदाम को ला, ताकि सब मिलकर तेरे नाम की तारीफ कर सके, तेरी बुजुर्गी के गीत गाए, तेरी प्रस्तुत करें, तेरी इबादत करें, तेरा शुक्रिया अदा करते। तू जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, तेरी मर्जी यही है कि तेरे बच्चे तेरी फरमाबरदारी करें और तेरे मंसूबे में शामिल हों, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और कलीसिया तरक्की करे। अपने इल्म से अपने लोगों को मामूर करना, यस है खुदावन, ज़हनों को खोलना ताकि किताबे मुकद्दस को जान सके। तेरा शुक्रिया अदा करता, आज की रफाकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता। ये दुआ तेरे पाक पवित्र अजीम रब रफ़ाए जलाली यीशु नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए सब हम दुआ करें। ज़मीन और आसमां के खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, तहे दिल से हम मशकूर हैं आज के इस फेलोशिप के लिए, इस इकट्ठ के लिए, रूहानी इज्तिमा के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि जो आपने अपने बंदा को रोया बख्शी विजन दिया ताकि खादमो दीन को इकट्ठा किया जाए और खुदावंद आपके नाम में, आपके कलाम में हम और ज़्यादा तरक्की करें। आपका यीशु नाम हमारी जिंदगियों के अंदर, चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर और ज्यादा जो है वो पावरफुली के साथ इस्तेमाल हो, और ज्यादा खुदावंद आपका जलाल जाहिर हो। हम आपकी कुदरत को देखना चाहते हैं। इसी इकट्ठ के जरिए से हम रिवाइवल चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बेदारी की रूह को मांग लेते हैं। खादमों के अंदर जब बेदारी होगी तो और ज्यादा जलाली काम होंगे, मुअज्जिज़ात होंगे और खुदावंद नाआशना रूहें जो हैं वो आपके कलाम से आशना हो जाएंगी। हम शुक्र अदा करते हैं, उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। खुदावंद आपकी कुदरत के वसीला से रिहाई मुमकिन है, क्योंकि आप कभी भी किसी को मुसीबत में, मुश्किल में नहीं देखना चाहते। उनके लिए रिहाई का इंतजाम कीजिए, अपना जलाली हाथ उन पर बढ़ाइए, वसाइल मुहैया कीजिए, हालात को साजगार बनाइए ताकि वो यीशु नाम की गवाही दे रहे थे, यीशु नाम की गवाही देते रहे। और भी जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, यीशु के नाम में वो रिहाई पा जाए। जो बेटा बीमार है, पात्रों की कुदरत उस पर काम करे, उसकी सारी बीमारी को यीशु के नाम से छिड़क देते हैं, यीशु के नाम से वो रिहाई पाए। आज का सारा जितना भी एहतमाम किया गया, खाने का अरेंजमेंट हुआ है, आपके जलाल का सबब है। सबों को बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। पिछले 20 साल से कर रहे हैं और ये सबसे पुरानी फेलोशिप है। मैं इंस्पायर हुआ इन सारी बातों से, जब अलग अलग जगहों पे लोग कर रहे थे इस बात के लिए, तो मैंने इसको यूहन्ना के खुदाम के साथ शेयर किया, बिशप साहब से शेयर किया कि सर हर जगह पे लोग फेलोशिप कर रहे हैं और खुदाम इकट्ठे, इवन के ग्रीन टाउन में भी, भाई विक्टर ग्रीन टाउन में भी आप लोग कर रहे हैं। सो ये हर जगह पे हो रहा है, तो क्यों ना हम यूहन्नाबाद के अंदर भी इसको स्टार्ट लिया, इसका शुरू किया जाए, ताकि हम भी यहाँ पे इकट्ठे हुआ करें, बाहर से भी खुदाम आए और मिल के खुदाम के नाम। लेकिन इसको शुरू करने से पहले पिछले 5 माह सितंबर से मैंने मेरी चर्च से, मेरी टीम ने इसके लिए दुआ करना शुरू की। हमने इसको सर्टन नहीं रख दिया कि एक जगह पे यहाँ पे काम हो रहा है तो हम इसको कर रहे हैं। हम पिछले सितंबर से, जैसे सितंबर शुरू हुआ, हमने इसके लिए दुआ करना शुरू किया, खुदावन हम इस काम को करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो। तो खुदावन के नाम को जलाल मिले कि आज इसकी पहली मीटिंग है और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे बहुत अजीज जो हैं दूर और नज़दीक से, बिशप ज़मान जो हैं, प्रोफेसर साहब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, आप सभी बहुत सारा वक्त निकाल के यहाँ पर आए हुए। खुदा यीशु से आपको बड़ी बरकत दे और मैं वक्त को ज़ाया किया। खाना रेडी है जी, खाना रेडी है। और खुदाओं के शुक्रगुजारी करें इन खूबसूरत लम्हात के लिए
जो खुदा ने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिए। आज की सारी फेलोशिप के लिए खुदाओं की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने अपने जलाल को, अपनी कुदरत को इस जगह पर ज़ाहिर किया है और खुदा ने अपने खादम के ज़रिए से इस बात को मुमकिन किया कि आज रूहे ज़मीन पर हम सभी मिलकर उसके कभी और कादर नाम में इस जगह पर मौजूद हैं। खुदाई कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, मेहरबान खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस सारी फेलोशिप के लिए, इस सारी मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए, खूबसूरत तेरे लोगों के लिए और तेरे खादमों के लिए खुदावंद जो इस जगह पर मौजूद हैं, और इस सच्चे प्लेटफॉर्म के लिए खुदावंद तेरे खादम पास्टर परवेज खोकर साहब के लिए कि खुदावंद आपने अपने बेटे को ये रोया बख्शी और आज खुदावंद खुदा हम उनके वसीला से जगह पर जमा है। खुदा उन तमाम बिशप साहबान के लिए, खादमीन के लिए, इन सब के लिए तेरी बड़ी बरकत को मांगते हैं और इन सारे प्लान्स के लिए, आने वाले सारे प्रोग्राम्स के लिए खुदावंद अभी से खुदावंद इन सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा बाप आप प्रोवाइडर हैं, आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद आने वाले अय्याम में हर एक खादम को खुदावंद तो अपने जलाल के लिए खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल कर और इन्हें भर कर दे, इन्हें बढ़ा मेरे खुदा, ताकि रूह ज़मीन पर तेरा कलाम कसरत के साथ फैले और आज के सारा इज्जत और जलाल ऑनर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। बिशप अकबर साहब दरख्वास्त करेंगे, वो सामने आएंगे और दुआ में बरकत से हमसे दूर रुखसत करेंगे। बिशप अकबर साहब आएंगे। मेरे जीजो, खुदावंद आप सबके साथ, खुदावंद तुम्हें बरकत दे और तुम्हें महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करे और तुम्हें सलामती बख्शे। खुदा का इत्मीनान जो हमारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और रूह कुद्दुस की मोहब्बत में हमेशा महफूज रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दुस की बरकत और शराकत कुल मुकद्दसीन के साथ, कुल मुकद्दस कलीसियों के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ, पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ, बिलखसूस इस हादर जमात के एक एक फर्द के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। मेरे जीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हम खुदावंद अपने खुदा का आज की सारी प्रस्तुति के लिए, सारी गैदरिंग के लिए और हदिया नजराने के लिए, खाने के लिए और खास तौर पर खुदा के जिंदा कलाम के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र बजा लाते हुए आए हम मसीह यीशु ने एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन। थैंक यू।